السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہفتے کا چوتھا اور آخری پروگرام ہے، اور آج ہی کے روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کو، جو ان کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ لاک ڈاؤن کھولا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، یا لاک ڈاؤن میں نرمی لائی جا رہی ہے، یا ہلکے لاک ڈاؤن کو مزید ہلکا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ پہلے دن بھی ایک کنفیوژن تھی اور آج بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے یا اعلان کرنے جا رہے تھے، تو اس وقت یہ بہت سے چینلز پہ چلنا شروع ہو گیا کہ جی ہفتے کے روز سے، پرسوں سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ یہ مکمل لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں بھی سلیکٹیو یہ نرمی کی جا رہی ہے، کچھ جگہوں کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جیسا کہ گزشتہ مہینے اپریل میں کنسٹرکشن کے لیے کہا گیا تھا جی کنسٹرکشن شروع کر لی جائے، تو ساتھ میں یہ کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ جی کنسٹرکشن کی تو آپ اجازت دے رہے ہیں، لیکن جو سامان خریدا جانا ہے، وہ کنسٹرکشن کا سامان جن دکانوں سے خریدنا ہے، وہ دکانیں ابھی تک بند ہیں، ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تو ان کو بھی ساتھ میں کھولنے کی اجازت دی جائے، جو کہ اب دی گئی ہے کہ آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو بھی دکانیں وہ کھولیں گی۔ پھر اور بھی ساتھ میں اعلانات تھے، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، تعلیمی اداروں کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 15 جولائی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے، اور اس سے پہلے جو جہاں تک پروموٹ کر کے دوسرے کلاسز میں اسٹوڈنٹس کے جانے کا معاملہ تھا، اس پہ کہہ دیا گیا کہ جو کلاس میں پہلے ان کی کلاس تھی، اگر کوئی 11ویں کا کسی نے بورڈ کا ایگزام دینا تھا تو اس سے پہلے جو ان کا رزلٹ آیا تھا 10ویں کا، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کی بیس پہ پھر آگے پروموٹ کر دیا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا یہ سب مینج ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اور ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ میں یہ واضح کر دوں، لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ، پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت، چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب مشکل میں ہیں۔ سفید پوش مشکل میں ہیں، کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے، ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، اس کا ہمیں خطرہ ہے۔ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس سے، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا۔ آپ نے سنا جی عمران خان صاحب کا یہی کہنا تھا، پرائم منسٹر صاحب کا، کہ جی اگر اس میں سپائک آئی دوبارہ سے تو ہمیں پھر سے یہ دوبارہ بند کرنا پڑے گا۔ اسد عمر صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے آج کے روز کیا کہا، یہ اب وہ دیکھتے ہیں۔ دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں، تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے، سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں، اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو 7 بجے سے 11 بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں۔ میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں، اینکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ، کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا۔ پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی۔ سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، ان کی صنعت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا، لیکن ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں۔ یہ بھی متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا۔ آپ نے سنا جی اسد عمر صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے کیا کہا۔ اب جو سندھ میں پوزیشن چل رہی ہے، جس میں ایکسچینج آف سٹیٹمنٹس آن اے ڈیلی بیسس چل رہا ہے، سعید غنی صاحب، ناصر حسین صاحب، اس کے علاوہ پھر پی ٹی آئی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ وہاں پر کیا معاملات چل رہے ہیں جو کہ کافی ہیٹڈ ڈبیٹ ہے، یہ اب وہ دیکھتے ہیں۔
ये सारा काम वफाक करे और आप इधर आके तमाशा करें, तमाशे बंद कर दे, लेट्स वर्क। एक होता है शऊर, एक होता है शोर। एन का फर्क है बीच में। जो शऊर रखते हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, और जो सिर्फ इस तरह शोर मचाते हैं, शेरू जो हैं, तो उनकी समझ में ये चीज आती नहीं है। जो ढोंग मचा रहे हैं, जो फंडों को खा रहे हैं, जो वफाक के 12,000 दिए हुए एहसास प्रोग्राम के उसमें से 1,000 रुपए मार गए, अगर ये नहीं रुका तो हम मजबूर होंगे कि सिंध की आवाम के फ्रंट को हम खुद इंडिविजुअली सारे MNAs मिनिस्टर्स लीड करेंगे। तुम होते कौन देखने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ना लगे। हमारी जो कामयाबियां हैं, हमारी जो तारीफें हैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ना लगे तो बुरा कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम लोगों की सेहत पर, लोगों की जिंदगियों पर ये जो घटिया हरकतें वो मत करो। आपने सुन लिया कि जी सईद गनी साहब, फैसल वाडा साहब, नासिर हुसैन साहब आपस में क्या एक दूसरे को कहा जा रहा है। अली जैदी साहब भी, उनकी भी आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आती रहती है, कभी हलीम आदिल शेख साहब की आती रहती है, फिरदौस शमीम नकवी साहब की आती रहती है। तो वहाँ पे एक अलग बहस चल रही होती है। सेंटर में हम देखते हैं कि इत्तेफाक है और इत्तेफाक राय से ही तमाम फैसले हो रहे हैं, लेकिन सिंध में मामलात कुछ और हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आप कह लीजिए, या वहाँ पर चूंकि ग्राउंड रियलिटीज सबके सामने है एक दूसरे की, कि कौन क्या कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कौन बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। तो फिर वहाँ पर शायद फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिनका ताल्लुक कराची से, उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो आज के प्रोग्राम के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ और फिर बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम के लिए डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें हुक्मरान जमात PTI से ज्वाइन किया है उस्मा कादार साहब ने। उस्मा साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आमिर हसन साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है साबिर शाह साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। सबसे पहले उस्मा साहब आपकी तरफ आते हैं। आपको मुबारक हो, यकीनन आपके लिए आज एक खुशी का दिन था कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस चीज़ में नरमी का ऐलान कर दिया जो कि पहले दिन से थी नहीं। जी बहुत शुक्रिया अली, आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें कोई खुशी इस तरह से नहीं थी, और आपने देख लिया है कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो सुनी तो एक उनके चेहरे से आपको वो संजीदगी और वो एक जो एंग्जाइटी है एक कौम के लिए, जो उनके दिल में एक दर्द और परेशानी है, वो खुल के सामने आ गया था। अगर लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी की गई है, वो बड़ी सख्त शराइत के साथ की गई है, और उसकी वजूहात कंफ्यूजन है। उसमें साहबा कथा कलाम के लिए माजरत, आप कह रही हैं कि लॉकडाउन में नरमी का ऐलान हुआ है या शराइत के जिसमें नरमी लाई गई है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब का जुमला यह था कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, लॉकडाउन खोल रहे हैं, ये उनके अल्फाज थे, हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। देखिए, जो बात हुई है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में चारों सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से मिल के मुशावरत करने के बाद जो डिसीजंस हैं वो आपको आज पहुंचाई गई हैं। उसमें ये एजेंडा पहले ही भेज दिया गया था सारों को, चीफ मिनिस्टर्स को, और उन्होंने इसमें अपनी अपनी आरा का इजहार आज किया। और 6 पॉइंट जो निकात हैं उन पे सबकी मुशावरत से अग्रीमेंट हुई, और कुछ में उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सूबों ने उनका जो इजहार किया, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सर फहरिस्त थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नहीं खुलनी चाहिए, रेलवेज भी नहीं खुलने चाहिए, आपकी फ्लाइट्स इंटरनल है वो भी नहीं खुलनी चाहिए। क्यों नहीं खुलनी चाहिए उसमें सर? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उसको कंट्रोल हो रहा होता है कि जब आप यहाँ से कौमी एयरलाइन के जरिए लोगों को पाकिस्तान से बाहर भिजवाते हैं, आप एयरपोर्ट्स पे तो उनको कहते हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से दूर रहें, खबरदार जो एक दूसरे के कोई करीब आया, लेकिन जहाज में एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं। नहीं, लेकिन उसमें भी देखें, जो अगर कैपेसिटी है 100% टिकट्स नहीं दिए जाते, 60% जब सेल हो जाती है टिकट्स की और वो भर जाता है 60% जहाज, सिर्फ फिर उसको फ्लाई कराया जाता है। और यही कुछ यही पॉलिसी आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे, यही पॉलिसी आप ट्रेन्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर प्राइम मिनिस्टर अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करते तो वो ये ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो सूबों से तहफ़्फ़ुज़ात आए उनको मलूज़े खातिर रखा और उनकी बात जो है उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये
ट्रेनों में और बसों में बड़ा मुश्किल होगा, इससे कोरोना के फैलने का खतरा होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी नहीं है मैन पावर कि हम इसको कंट्रोल उस तरीके से, एयरपोर्ट्स में लिमिटेड आता है, लेकिन बसें जो है, दिस इज अ ह्यूज डिबेट एंड दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि आप कह रहे हैं कि जी बसेस में कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक किराने की दुकान आप खोल रहे हैं, वहां पर जाता है काउंटर पे एक जाता है, कोई कस्टमर जाता है जाके कोई चीज खरीदने के लिए, अपना हाथ काउंटर पे यूं रखता है, वहां से सामान खरीदता है, खरीद के आ जाता है, खुदा न खास्ता अगर उस शख्स को कोरोना है, फिर अगला आके शख्स जो है वो साथ में खड़ा हो जाता है, वो भी उसी काउंटर पे हाथ रखता है, तो वहां पे भी तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अली देखें, इस वक्त आपका पूरा मीडिया, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, सोशल मीडिया, बच्चे को पता है कि जो कोरोना वायरस है ये किस तरीके से फैलता है और किस चीज को हाथ लगाने से फैलता है, सब एहतियात। अब मैं आपके प्रोग्राम में आई हूं ना, लेकिन मुझे पता है कि मैंने काउंटर को भी हाथ लगाया है, मैंने लिफ्ट को भी हाथ लगाया है, मैंने दरवाजे को भी लगाया है, मैंने ये हाथ बगैर किसी चीज को, बगैर साबुन से 20 सेकंड घर जाके धोने के और अपने कपड़े उतार के जूतों को डिसइंफेक्ट करके मैं घर के अंदर दाखिल नहीं होती। बच्चे को पता है इस चीज का। यही अवेयरनेस जो है आप लोगों ने भी दी है, बदकिस्मती से आप जिस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी ये वो इलीट है गुलबर्ग की, डिफेंस की, E7 की, कि जिनको जो है इन चीजों पर जो चाहती है कि जी लॉकडाउन मुकम्मल हो, सिर्फ उसी को अवेयरनेस है, जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि जी ये चाहते हैं कि लॉकडाउन मुकम्मल लॉकडाउन हो, अवेयरनेस भी सिर्फ उसी तबके में है। बाकी आप जाकर देखें बाजारों में बेतहाशा आपको लापरवाहियां नजर आएंगी। ऐसा कतन नहीं हो रहा है कि लोग एहतियात कर रहे हैं, लोग समझ पाए हैं, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन के मारे लापरवाहियों पे लापरवाहियां हो रही हैं। देखें सबको, ये एक तो एलीट का जो लफ्ज है उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था एक सूबे में एक कोई खास मखसूस तबका है जो कि लॉकडाउन कर रहा है और जो कि कामयाब भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से आपके मैच नहीं कर रहा। इस वक्त आपकी 10 लाख छोटे ऐसे कारोबार हैं जो बंद होने पे आ रहे हैं। 84% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी इनकम आधे से भी कम रह गई है। एक गैलप सर्वे हुआ है कि 4 में से 1 फैमिली जो है उन्होंने अपनी जो खुराक में भी कमी कर ली है। लोगों की जमा पूंजी इस वक्त खत्म हो गई। सफेद पोश तबका आपका इस वक्त सख्त तकलीफ में है। आपके दिहाड़ी दिहाड़ जो 70% रजिस्टर्ड ही नहीं, वो उनके चूल्हे जो है वो ठंडे हो गए। इमदाद पैकेज 1200 अरब का है, हर तरीके से हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम बहुत अरसे तक हम मईशत का पहिया जो है उसको जाम करके बैठे रहे। ये सारी वहां पर एक आम आदमी सफेद पोश काम नहीं करता। अब कराची में जो ताजिर हैं, कराची में जो ताजिर हैं वो क्यों इस वक्त सरापा एहतजाज हैं? लाहौर की भी ताजिर सरापा बिल्कुल है, क्योंकि जो छोटे छोटे कारोबार हैं वो बंद होने वाले हैं। आपको पता है कि 2 से 7 करोड़ लोग और खते गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का इम्कान है इस वक्त। तो आप मुझे ये बताएं किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं आमिर हसन साहब, वुड यू से कि जो फैसले हुए हैं और मुतफक्का फैसले हुए हैं ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ये बिल्कुल ठीक हैं फैसले, या आप समझते हैं कि मजीद नरमी लाई जाए, या तो मजीद सख्ती कर दी जाए या फिर मजीद नरमी लाई जाए, और ये लॉकडाउन लफ्ज जो हमने 1.5 माह से सुना हुआ है, जो कि बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि था ही नहीं, क्यों लॉकडाउन लॉकडाउन बार बार कहते हैं, इसको खत्म करें, बस जो जगह हैं जिनको अभी भी बंद रखा हुआ है उनको भी खोल दें। देखिए, एक है यकीन और एक है बेयकीनी। यकीन के अंदर आप मट्टी भी खाएं तो आपके लिए शिफा हो जाएगी, और बेयकीनी में आप पूरी दवाई भी खा लें, और अगर आपको यकीन ही नहीं है कि मुझे अफाका होगा तो नहीं होता। ये है वो भोंडे दलाइल जो दिए हैं हुकूमती तर्जुमानों ने, हुकूमती वज़रा ने, और ख़ुद वज़ीर आज़म ने पिछले 2 महीने से जो चंद मिनट पहले आपने सुने हैं। अब इसमें बात यह है कि अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि लॉकडाउन अगर गलत था तो आपने 2 महीने क्यों रखा, और अगर लॉकडाउन होना चाहिए था तो अब जब इस वक्त के पीक के ऊपर हैं केसेस कोरोना के पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त आपका डेथ टोल जो है वो 100% पिछले 10 दिन के अंदर बढ़ गया है, और अगले 4 से 6 हफ्ते खतरनाक तरीन हफ्ते हैं। इन दिनों के अंदर आप इसका नाम बदल के स्मार्ट लॉकडाउन और फलां, मुझे नहीं समझ आती। बात इतनी है कि अगर लॉकडाउन हो जाता जैसा कि लॉकडाउन होना चाहिए था, और हमारे वजीर आजम जो बुकरात साहब हैं वो अपने लेक्चर ना देते नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के हर इजलास के बाद, वो आके अपनी दरफतनी ना छोड़ते कि भाई मुझे बड़ा फिक्र है, मुझे फलां का बड़ा फिक्र है, मुझे फलां का बड़ा फिक्र है। भाई अगर आपको फलां का फिक्र है तो आप फिर उसके लिए कुछ करें। क्या रियासत के पास वसाइल नहीं है? और अगर आप फलां के फिक्र में मारे जा रहे हैं
تو بتائیں کہ پاکستان اگر فلاحی ریاست ہے تو فلاحی ریاست کے اندر عوام کی جان بچانا زیادہ اہم ہے یا ملک کی معیشت بچانا؟ عامر حسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ممکن ہو پائے گا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ عوام کو خود بھی احتیاط کرنی ہے، جو ابھی عظمیٰ صاحب ابھی کہہ رہی تھی کہ عوام میں اب شعور ہے، اور اسی ہفتے میں پہلے کے پروگرامز میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ عوام میں شعور. عظمیٰ صاحبہ نے فرمایا وہ ڈس انفیکٹ کرتی ہیں اپنے شوز کو، اپنی چیزوں کو. ارے بھائی دنیا کے اندر 3 ارب لوگوں کے پاس ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور صاف پانی نہیں ہے، تو آپ یہ باتیں نہ کریں. پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگوں کے پاس یہ آسائشیں موجود نہیں ہیں. اشرافیہ وہ نہیں ہے جو لاک ڈاؤن لگوانا چاہتا ہے یا نہیں لگوانا چاہتا. اشرافیہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو سینیٹائزر ہے، میں تو شاید بچ جاؤں گا، باقیوں کو جھونک دو نیچے اس نام پہ کہ آپ کو دیہاڑی کی ضرورت ہے، آپ نکل جائیں. دیہاڑی کے چکر میں آپ بیماری لاتے ہیں تو لاتے پھریں. آپ کو 12,000 خیرات کی صورت میں دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ چاہے آپ کو ہم کوئی جراثیم بیماری کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. دیکھیں بات بڑی سادی بات ہے. ہمیں اگر یہ ہم نے لاک ڈاؤن ایک دفعہ صحیح 15 دن کے لیے کر لیا ہوتا تو آج ملک کے اندر یہ مسائل نہ ہوتے. اگر تفتان بارڈر کا بلنڈر نہ ہوتا، اگر فلائٹس کو اسی وقت صحیح طرح چیک کر کے جو لوگ باہر سے آئے تھے، کیونکہ پاکستان اوریجن نہیں تھا، اگر کوارنٹین کیا جائے. صابر شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ کی سندھ گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ سندھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی NCC کا حصہ ہے، وہاں پر یہ متفقہ طور پر اس پر اگری ہوا ہے کہ یہ ان شرائط کے ساتھ یہ فلاں 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 کو اجازت دے دی جائے. کنسٹرکشن انڈسٹری، دکانیں بھی مینشن جو ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ایک آواز ہیں سندھ حکومت. اس کے جب سندھ حکومت کے آرگومنٹس ہوتے ہیں تو پنجاب حکومت اور بلوچستان حکومت فیور کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسائل کس قسم کے ہیں. ادروائز وہاں پہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ معاملات کیا ہیں، نہ وہ کسی کو جواب دیں ہیں. اب جو پرائم منسٹر نے ساتھ مسخرے بٹھا کے 2-2 منٹ انہیں کوئی بات کرواتے ہیں، وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا کیا سٹیک ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک کے بارے میں کہا کہ وزارت صحت ایک نکمے اور نااہل آدمی کے حوالے کر دی گئی ہے. تو اگر آپ ان کی ایکسپرٹیز کے اوپر سارے فیصلے کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو بات، آپ نیشنل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلائیں جس میں 4 وزرائے اعلیٰ ہوں اور دوسرے جو 2 ہمارے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر وہ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، اور پھر ادھر بات ہو. جب نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر 80-90% آپ نے سلیکٹڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ادھر بیچارہ مراد علی شاہ ساری باتیں کہتا ہے، اس میں مصیبت. آج آخری فکرہ، اگر سندھ حکومت نہ ہوتی، آپ خوش قسمت ہیں، ہم شکر ہے کہ سندھ حکومت ہے، مراد علی شاہ ہے اور ہماری اس وقت کی شعور اجاگر کرنے کی باتیں ہیں. ادروائز آج پنجاب خدا نہ خواستہ ووہان ہوتا، پشاور نیو یارک ہوتا، جس قسم کی ان کی پالیسیز رہی ہیں. یہ تو اچھے خاصے معاملات میں بہام پیدا کرتے ہیں. اعلانات ہوئے ہیں آپ کی رائے میں کیا ٹھیک اعلانات ہوئے ہیں، ٹھیک وقت پر ہوئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے بلکہ یہی تو خطرہ ابھی ہی عروج پر ہے، اور عروج پر جب خطرہ ہے تو ہم لاک ڈاؤن ختم کرنے کی باتیں نہیں کر سکتے یا ہم نرمی کی باتیں نہیں کر سکتے، ہمیں مزید سختیاں کرنی ہیں؟ اور عوام پر کیا آپ کی نظر میں ریلائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ احتیاط خود کریں گے؟ علی، پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کو قصوروار ٹھہرانا بہت آسان کام ہے. نہ وہ کورونا لے کے آئے ہیں اور نہ وہ اس کا تدارک اس طرح کر سکتے ہیں، ساری دنیا فیل ہو گئی. Having said that, پرائم منسٹر بہت کنفیوزڈ ہیں، کبھی لاک ڈاؤن ٹھیک ہے کبھی نہیں. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کھول دیں، تو یہ ڈیسپریٹ میجر ہے، ڈیسپریٹ ٹائمز وارنٹ ڈیسپریٹ میجرز. Having said that, لاک ڈاؤن یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سمارٹ لاک ڈاؤن ایک فراڈ ٹرم ہے. واٹ از اے سمارٹ لاک ڈاؤن؟ میں پچھلے 15 دن سے سڑکوں پر دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں. امداد صرف حکومت تو نہیں دے رہی، دفاعی ادارے بھی دے رہے ہیں، فلاحی ادارے بھی دے رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں. دوسری بات، کنسٹرکشن سیکٹر کھول دیا، چھوٹی موٹی انڈسٹری کھول دی. اور بھائی یہ لیبر مرسیڈیز پہ آئے گی کام کرنے، اس نے ٹرانسپورٹ پہ ہی آنا ہے نا. تو ٹرانسپورٹ نہیں کھولی آپ نے، ٹھیک کیا، نہیں کھولنی چاہیے، تو پھر انڈسٹری کھولنے کا کیا فائدہ. اب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیے اس وقت کرو اوپر جا رہی ہے، 33 ڈیتھس ہو گئی ہیں ایز وی اسپیک. اس کا مطلب ہے ڈیتھس کی جو کرو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. ابھی اس کے بعد پلیٹو سٹیج آئے گی
جس سے آپ کہتے ہیں سطح مرتفع وہ ابھی نہیں آئی, وہ پتہ نہیں کب آئے گی, 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد. اس جگہ پہ جا کے 7, 8, 10 دن کے لیے اموات جو ہیں وہ تقریباً کانسٹنٹ ہوں گی, 40, 45, 50, 55. اس کے بعد کرو نیچے آئے گی, اور وہ جون میں آتی ہے, جولائی میں آتی ہے, ہمیں نہیں پتا. لاک ڈاؤن کھولنے کا اس وقت فیصلہ میرے نزدیک بڑا بھیانک فیصلہ ہے. ان کو ممکن ہے واپس لینا پڑے 2-4 دن تک, اس لیے کہ بھی کرو اوپر جا رہی ہے. جب جانا شروع ہوئی تو اب لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. بھائی صاحب فیصلہ کرنا پڑے گا, جیسے میں نے کہا, لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن. کرونا سے مرنا ہے یا بھوک سے مصیبت کاٹنی ہے. بھوک سے اتنے لوگ نہیں مر سکتے جتنے کرونا سے مریں گے. اب پوزیشن کیا ہے, 0.11% ٹیسٹنگ ہوئی ہے ٹوٹل. ہمیں پتہ ہی نہیں کرونا کتنا پھیل چکا ہے, کس کو کرونا ہے کس کو نہیں ہے. I am a data driven man, Ali Mumtaz. I rely on my research, I look at the graphs, I interpret them, اور میں پھر انالیسس دیتا ہوں. یہ تو نہیں پتا کسی کو کہ کرونا کتنا پھیل چکا ہے یا کتنا پھیلے گا. Having said that, اموات تقریباً 550 کے قریب ہیں اور ریکورڈ پیشنٹس تقریباً 5,500 کے قریب ہے. اس کا مطلب ہے 10% ریٹ ہے. یہ وہی ریٹ ہے جو یورپ یا امریکہ میں ہے. فرض کیجئے, اللہ نہ کرے اگر 1 لاکھ پیشنٹ ہو جاتے ہیں جون کے اینڈ تک, تو اس کا مطلب 10,000 لوگ مر جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, آپ کے ہیلتھ سسٹم میں اتنی جان ہے, اتنے وینٹیلیٹر ہیں آپ کے پاس, پتہ نہیں 500 700 ہیں ایک صوبے میں. ڈاکٹرز کئی جگہ پہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو رہے اور کئی جگہ مریضوں کے قریب بھی نہیں جا رہے. ہم نے میو ہاسپٹل کا سکینڈل بھی دیکھا ہے, ہم نے کوارنٹین سینٹر لاہور ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن کا سکینڈل بھی دیکھا ہے. اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی خدمات سے انکار کر رہا ہوں, لیکن ایک ٹوٹل کیوس ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. میں پرائم منسٹر کو مکمل طور پہ بلیم نہیں کروں گا, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جناب, آپ نے جو فیصلہ آج کیا, اگر اس کو 6-7 دن پہلے کر لیتے اور 2-3 دن کے لیے مارکیٹس کھول کے لوگوں سے کہتے کہ جی اپنے کپڑے وپڑے خرید لیں, لیکن یہ ماسک کسی نے نہیں لینے. وی آر اے سوشلی ارسپانسبل نیشن. ہم سویڈن نہیں, ہم ڈینمارک نہیں ہیں. ہمارے ان کے ہاں کوارنٹین کا مطلب کوارنٹین ہے. وہ خود بخود 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں, انہیں پتا ہے کیسے سفر کرنا ہے ٹرین میں, ٹرام میں. آپ کے ہاں کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہے. شعور اور آگہی سب کو پتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, لیکن ہم ٹھیک ہیں. اور پرائم منسٹر نے اس بات کا اظہار بھی کیا اور بالکل ٹھیک کیا کہ اب ڈنڈے کے ساتھ تو نہیں سکھایا جا سکتا اگر ہم سیکھنا نہ چاہیں. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے آپ. سو عوام بڑی قصوروار ہوگی. اگر یہ پھیلا تو حکومتوں کا قصور کم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو پتہ نہیں کس طریقے سے شعور دیا جائے گا, میں نہیں جانتا. میں اتنا جانتا ہوں ابھی تک کوئی دوائی یا کوئی ویکسین نہیں آئی. $1300 ارب کی دنیا کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ناکام ہو چکی ہے. سائنسدان سب فیل ہو چکے ہیں. کوئی کسی قسم کی دوائی نہیں آئی. دعوے بہت ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ دوائی آئے ہی نہ ہو پورا سال. اب پھر سوچئے کیا ہو. تو صابر شاہ صاحب, آپ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جو ابھی یہ نرمی ریلیکسیشن کا اناؤنس کیا گیا, یہ ابھی نہیں ہونی چاہیے تھی. Ali Mumtaz, I think this is a very wrong time to slacken the lockdown. Lockdown یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. I reiterate. What is this smart lockdown? کیا ہے یہ smart lockdown? یہ ٹرم کا مطلب بتائیں آپ مجھے کیا ہے. It is a lockdown or it is no lockdown. سیدھی بات ہے. Right. صابر شاہ صاحب, we've got to take a break over here. جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں جس میں آپ نے خاص طور پہ کہا کہ we are socially irresponsible, and then پھر آپ نے لاک ڈاؤن کی بھی کہا کہ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بیچ والا رستہ تو نہیں ہوتا. آج کے ہمارے پروگرام میں بھی ہم یہی اپنے ہیڈز میں بھی شامل کر رہے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی کب تک چلے گی. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو پھر عظمیٰ صاحبہ کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر ہم سوشلی irresponsible ہیں تو پھر یہ کیسے چلے گا. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. عظمیٰ صاحبہ, آپ نے عامر حسن صاحب کی بھی اور صابر شاہ صاحب کی بھی رائے سن لی اور بڑا کلیئرلی, ایک تو صابر شاہ صاحب نے کہا کہ سوشلی irresponsible ہیں ہم, لاک ڈاؤن یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. واٹ از دس اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ پہلے تو علی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بیرسٹر صاحب جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, بونگے, مسخرے, اسی لیے شاید پیپلز پارٹی نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا اور یہ انر سرکل میں تو ہے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپن کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے کیا ڈیسیجنز لے رہی ہے ڈیلی بیسس پہ, کہ وہاں پہ سعید غنی صاحب, ناصر حسین صاحب کون سے سرکل میں, یہ بھی بتا دیں. میں نے ان کے بھی ساؤنڈ بائٹس آج پروگرام میں شامل کیے ہیں. وہ بھی وہاں پر سندھ میں بیٹھے ہوئے, پی ٹی آئی کے فیصل واڈا صاحب, علی زیدی صاحب, دیگر اور بھی جو جملے وہاں پر ایکسچینج آف ورڈز ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں,
وہ بھی تو اعتراض کر رہے ہیں, وہ بھی ایسے. ابھی سعید غنی صاحب کی جملہ تھے کہ اس قسم کی گھٹیا باتیں نہ کریں, وہ بھی ساؤنڈ بائٹ ہم نے شامل کیا تھا. جب وہاں سے گولہ باری ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے جو لوکل لیول پہ جو پولیٹیشینز بیٹھے ہیں نا, 14 سیٹیں وہاں پہ پی ٹی آئی کی بھی تو ہے نا, تو وہ پھر لوکل سطح پہ جب آپ ایک برا بھلا کہیں تو پھر اس کا آگے سے جواب بھی ان کو ملتا ہے. اب آپ دیکھیں وہ ڈاکٹر فرقان کی بات ہوئی تو کیا ہم پی ٹی آئی اپوزیشن میں تو کیا اس کی وہ بات نہ کریں؟ ابھی دیکھیں 375 ایسے نام ہیں ان کی جو سندھ گورنمنٹ میں جن کی بیگمات نے بے نظیر انکم سپورٹ سے کروڑوں روپے ہضم کیے, اب ان سے وہ کروڑوں روپے واپس اگلوائے جا رہے ہیں, تو کیا وہاں پہ اب بات نہ کی جائے؟ یہ تو ان کا حال ہے سندھ گورنمنٹ کا. پھر یہ باتیں کرتے ہیں وہاں پہ کتوں سے ڈیتھ ہو رہی ہے, وہاں پہ اب تھر میں دیکھیں بچوں کی بھوک سے ہو رہی ہے, اور وہاں پہ ایڈز کا حال دیکھ لیں کیا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے اعلیٰ ہیں اور ہم نے ایگزامپل سیٹ کیا. سندھ حکومت نہ ہوتی تو پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا بیڑا غرق. یہ ووہان کی بات کرتے ہیں, آپ 6 مہینے دے لوگوں کو گھر پہ راشن پہنچائیں, آپ کی اتنی سکت ہے؟ ہم ترقی پذیر, ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے, پتہ نہیں 1200 ارب کا کہاں سے ادھر ادھر سے سارا پیسہ ڈائیورٹ کر کے تو اس ہیلتھ ایمرجنسی کے لیے سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ دیا گیا ہے, اور سب سے بڑا کوارڈینیٹڈ جو پروگرام ہے وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے تھرو خود پرائم منسٹرز کو ہیڈ کر رہے ہیں. نہ جانے یہ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ سی سی آئی کی باتیں کریں. سی سی آئی تو پیچھے رہ گیا ہے. اب ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, کوارڈینیشن ہوتا ہے. ایک پاکستانی بن کے سوچیں, ایک پیج پہ رہ کے سوچیں. دیکھیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی میں آپ کو, یہ بڑا ایک سمارٹ وائرس ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تھوڑی بہت جو ڈیلی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پریکاشنز لیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور اس کے مطابق تاکہ تھوڑا بہت کاروبار بھی لوگوں کا چلے اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی اس طرح سے متاثر نہ ہو. اگر لوگوں نے, پرائم منسٹر نے پوری قوم سے آج ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہ ذمہ داری دکھائیں, وہ رسپانسبلٹی دکھائیں, کیونکہ یہ حکومت اکیلا نہیں کر سکتی ہے. اگر قوم ذمہ داری نہیں دکھائے گی تو پھر ہر چیز بند ہو جائے گی, کیونکہ یہ ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور ٹریجیکٹری دیکھیں, جو ایسٹیمیٹ تھا وہ یہ تھا کہ لاسٹ ویک آف اپریل میں 50,000 کیسز ہو جائیں گے. ہمارے 12 سے 13,000 کیسز تھے. وہ اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی اب یہ مئی کے اینڈ پہ جا کے یہ 50,000 تک جائیں گے, رائٹ؟ ایسے ہی کہا تھا نا پرائم منسٹر صاحب نے. اب وہ اسی طرح سے ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو رہا ہے, مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. جب آپ کے اب تک 2 لاکھ, کل تک کے فگر 2,82,000 آپ کی ٹیسٹنگ صرف ہوئی ہے. 22 کروڑ کی عوام, 2,82,000 ٹیسٹنگ ہے, تو اس طرح بھلے اگست کے مہینے پہ آپ لے جائیں, لٹکائی جائیں, اس کو لمبا کیے جائیں, لیے جائیں. یہ دنیا کے لیے ایک جھٹکا ہے. یہ دنیا وہ پرانی دنیا نہیں رہی ہے. پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں پہ 2 ڈیتھس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسپین میں 10 لاکھ لوگوں پہ 400 ڈیتھس ہیں, اٹلی میں 10 لاکھ لوگوں پہ 300 ڈیتھس ہیں. اب امریکہ میں دیکھیں 75,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بہت کرم ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. ٹیسٹنگ, ہماری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور اب تو ہماری سمارٹ ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے. میڈیا ہاؤسز میں پنجاب گورنمنٹ جا رہی ہے, بازاروں میں جا رہی ہے, مساجد میں جا رہی ہے, سٹورز میں جا رہی ہے, وہاں پہ رینڈم سمارٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, جس سے پتہ چلے گا کہ یہ پھر آپ کی جو ایک کلسٹر اور ریڈ زونز جو ہیں, جہاں پتہ لگتا ہے کہ کوئی کیس ہے, فوراً وہاں پہ ٹریس اور ٹریکنگ ہوتی ہے, اس کو لایا جاتا ہے اور وہ سیل کیا جاتا ہے علاقہ. وہاں پہ اس علاقے پہ راشن پورا پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کریں. آپ کو پتہ ہے یورپ میں 1000 یورو فائن ہے اگر آپ گھر سے بغیر اجازت نکلتے ہیں. آپ یہ پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ آپ کی یہ اتنی سخت ہے آپ کے پاس ترقی پذیر نہیں گاڑی میں 2 سے زیادہ لوگ سوار ہوں تو پھر چلان تو وہی رہا ہوتا ہے نا, جرمانے تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں جن کی ہزار گنا ہیلتھ کے سسٹم ہم سے بہتر تھے وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. ہم کس گنتی شمار میں آتے ہیں؟ تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اور ہمیں اس خوف سے, اس ڈر سے ہمیں یہ عوام کو نہیں پٹی پڑھانی چاہیے کہ ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے. ڈرنے کا مقام ہے, ڈرو گے تو گھر پہ رہو گے, نہیں تو اگر ڈرو گے نہیں سڑکوں پہ نکل آؤ گے تو وائرس خود بھی اپنے آپ کو خدا نہ انفیکٹ کرواؤ گے, دوسروں کو بھی کرواؤ گے. آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں. جی عامر حسن صاحب, آپ وہ چیزیں کہیں جس کا آپ کو جی عامر حسن صاحب, پہلی بات یہ ہے صابن ہر ایک کے پاس ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات سنیں نا. جی عامر حسن صاحب, میں نہیں سمجھتا, میری پارٹی میں جو بھی حیثیت ہے, پارٹی بھی جانتی ہے, میں بھی جانتا ہوں, لوگ بھی جانتے ہیں, مجھے نہیں ضرورت ہے اب میں ان پہ یہ اعتراض کروں کہ یہ خود تو ان کی ایم پی اے ہیں
اور ان کے گھر والے ان کے ساتھ نہیں. मैंने कभी बोंगे और मस्खरे नहीं कहा. मेरी बात सुने यार. पॉलिटिकल डिबेट रखते हैं देखिए इसे ऐसे ही रहने दें. बात ये है कि सवालात इनसे ये किए जाते हैं, ठीक है जी आप लॉकडाउन हटाएं, आप लगाते ही ना, एक लम्हे के लिए ना लगाते. अल्लाह की इतनी बरकतें हैं यहाँ पे कि अभी 591 लोग हो गए हैं यहाँ पे जहाँ बहक इस बीमारी से, और जिस तरह जा रहा है और इनके नज़दीक ये सारी बरकतें अभी हैं, तो फिर भाई आप एक लम्हे के लिए भी लॉकडाउन ना लगाते. देखिए बात को अगर जब तक आप मसले को समझेंगे नहीं उसके हल की तरफ नहीं जाएंगे. मसला है दुनिया भर में बिल्कुल मानते हैं कि बड़े बड़े मुल्कों का नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है उनका बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और कोलैप्स इसलिए किया कि भाई ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है और इसके खिलाफ लड़ना. अब इसके खिलाफ आपके पास इतनी दुनिया की मिसालें आ गई, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स थी, आप बहुत कुछ कर सकते थे. भाई आपने क्या नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर, कल अभी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर बता रहे थे कि 2 वेंटिलेटर भेजे हैं वफाकी हुकूमत ने. ये है वो हेल्थ इमरजेंसी जो इन्होंने नाफिज की है. और जो इनके स्कैंडल्स आ रहे हैं वो तो अलग आपको नजर आ जाएंगे. अभी शाह साहब ने भी जिक्र किया यहाँ पे एक्सपो सेंटर का. मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पेशेंट्स के साथ कैसा सलूक है और किस तरह कितना पैसा लगाया गया. मियो हॉस्पिटल वाला जो इनका कवर अप सारा जो स्टोरीज आ रही हैं वो आप देखेंगे, आपके सामने आ जाएगी. और उसके बाद मुझे बताएं कि 12 करोड़ इन्हें मुराद अली शाह बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो बात करता है, वो आर्ग्यूमेंट्स देता है, वो सिंध के लोगों का मुकदमा लड़ा है, ना सिर्फ सिंध के लोगों का, वो पाकिस्तान के लोगों की सेहत का मुकदमा लड़ा है. लेकिन इनका जो वजीर आला पिछले 20 महीनों से क्वारंटीन में है वो कभी बोला है, उन्होंने कभी बात की है? इन लफ्ज बड़े बुरे लगते हैं. अब जो नहीं बोलता वो कहते हैं ना बोल बोल मिट्टी दे अब भाविया. अब ये जो कुगू कोड़े आपने 12-12 करोड़ लोगों के ऊपर बिठाए हुए हैं और वो बोलते भी नहीं इतनी मुश्किल के अंदर, बताते भी नहीं कि हालात क्या हैं और हमें नबर्द आजमा किस तरह होना है. भाई आप लोग लॉकडाउन को लॉकडाउन कर लेते 15 दिन के अंदर. हम बार बार कहते हैं अगर 15 दिन या 2 महीने जो हमने गुजारे हैं, अली मुमताज साहब क्या हमने ये लॉकडाउन किया है? इस लॉकडाउन को सैबोटाज किसने किया है? सैबोटाज करने वाली एक ही शख्सियत है और वो लफ्ज मेरे नहीं है, इन्हें गुस्सा आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज हैं. अनापरस्त, मुतकब्बर, मुतआसब शख्स जो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा है, उसने हमेशा मजाक उड़ाया है. नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी लॉकडाउन का ऐलान करती है, सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन का ऐलान करती है और वो सारे बैठ के आर्गुमेंट्स उसके खिलाफ देता है. तो और कंफ्यूजन आपने किस तरह फैलानी है? आपके वो वजीर जो सूबों के अंदर जाके कहें कि ताजिर बाहर निकलेंगे, बगावत हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ऊपर वफाकी हुकूमत ने और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लॉकडाउन का ऐलान किया हो, तो क्या उन्हें हम कम अज कम लफ्ज में मस्खरे भी नहीं कह सकते? ठीक है साबिर शाह साहब, एक आखिरी बात मैं समझता हूं, हम फिर हाथ जोड़ते हैं, ये आपकी हमारी सियासी लड़ाई नहीं है. आप सियासत करने आए हुए हैं. इमरान खान का जहन है कि उसने गवर्नर हाउस लाहौर में कहा कि ये वक्त है, आपके पास बजट है, अपने अपने हलकों में छा जाएं और हल्के हमेशा के लिए पक्के कर लें. हम इसलिए नहीं आए, हम कहते हैं लोगों की जिंदगियों से मत साहिबा की भी राय सुन ली, आपने सुन लिया कि उनका जवाब क्या था कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है. आपकी नज़र में साबिर शाह साहब इस मसले का हल क्या है? क्योंकि ईद का मौका भी है, बहुत से ऐसे छोटे ताजिर हैं जिन्होंने माह रमज़ान में या आखिरी 15 रोज़ में उनकी बहुत सी चीज़ों का दारोमदार उस पर होता है कि जी उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया होता है, उसको भी फ़रोख्त करना होता है, लोगों ने भी ईद के लिए ख़रीदारी करनी है. तो क्या किया जाना चाहिए था या क्या होना चाहिए ताकि हम कोरोना के साथ जो हमारे ये मामला चल रहे हैं, जो मुश्किलें हैं, हम उसको भी फेस कर सकें और साथ साथ ये दूसरी चीज़ें भी साइड बाय साइड चलती रहें? अली मुमताज साहब, बिजनेस एंड कोरोना कैन नॉट गो टुगेदर. या बीमारी को फैला लें या बीमारी को वहीं रोक दे जहां है. ये बीमारी ऐसे ही फैली है. जहाज इन्होंने आने दिए बाहर के मुल्कों से, ये बहुत ही गलत पॉलिसी थी. वाहिद एक पॉलिसी जिस पर मैं तनकीद कर रहा हूँ वो ये जहाज है. दूसरा, ये एहसास प्रोग्राम के ऊपर लाइनें लगवाई हैं इनको नहीं पता था कि लाइनें लगने से क्या होगा. जिस आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी वो तो लड़के भी रिस्क हासिल करने की कोशिश करेगा. 2 बातें, कुछ भी नहीं हो सकता, कसूर किसी का ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसी बीमारी को लेके आया, कोई वजीर आला या कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ये कुछ कर सकते हैं बाहर की दुनिया में, ना ट्रंप कुछ कर सका, ना यूरोप कुछ कर सका. आप इनकी बातें सुनते थे, इनके साइंसदानों की बातें सुनते थे, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता. एक ही तरीका है, बंद कर दें सारा कुछ, ये ना आपको 5-6 दिन के बाद करना पड़े. रिमेंबर वन. इसके बाद जो हालात होंगे, दुनिया बदल चुकी है.
अरबपति खरबपति भी घरों के अंदर कैद हैं और बाद में जब बाहर निकलेंगे तो उनके भी कारोबारों का बेड़ा गर्क हुआ होगा। अली, फैक्ट्री को इस्त्री नहीं है कि इसको बंद कर दिया और चला लिया। एक दफा फैक्ट्री बंद हो गई तो कई महीने फैक्ट्री नहीं खुलेगी, कई बैंक तबाह होंगे, कई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तबाह होंगी, कई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज तबाह होंगी, उनके साइज श्रिंक हो जाएंगे। ऑनलाइन पे लोग कारोबार कर रहे होंगे छोटे मोटे कमीशन के ऊपर और माल बेच रहे होंगे और बड़े बड़े सेठ परेशान होंगे, स्टॉक एक्सचेंज डूबेंगे, जमीनें नीचे आएंगी। आपको क्या पता क्या होने वाला है? गरीब तो पहले ही सफर का रिकॉर्ड कर लेगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप? ये अशराफिया शरूफिया वाले जो ड्रामे है ना, ये अशराफिया को भी पता लग जाएगा। ये पहली दफा सारे काबू आए हैं जहां बादशाह को भी कोरोना हो सकता है, जहां शहजादे को भी हो सकता है, जहां गरीब आदमी को भी हो सकता है। और दूसरी बात है, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये क्लिप संभाल के रखिएगा। पाकिस्तान का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पूरी इकोनॉमी $285 अरब। एक दिन अगर पूरी इंडस्ट्री बंद हो, कोई काम ना हो, कर्फ्यू लगाओ, टोटल लॉकडाउन हो, तो नुकसान है 131 अरब रुपया रोज का। फर्ज कीजिए 100 अरब रुपया रोज का नुकसान हो, चलिए 31 अरब का कारोबार होता रहे। इसका मतलब ये कि आपकी जो इकोनॉमी है 150-200 अरब डॉलर तक आ जाएगी साल के आखिर में। दुनिया भर की इकोनॉमी 9000 अरब डॉलर की है, वो 25 से 30% श्रिंक होगी। आपकी एक्सपोर्ट्स आधी रह जाएंगी, शायद रह गई हैं। तो आपके साथ जो होगा वो दुनिया से ज्यादा बदतर होगा, क्योंकि आपके अंदर तो कुशन ही नहीं था किसी किस्म का शौक संभालने के लिए। दूसरी बात है, आपको स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन दे दूं, ये जंगों में लग सकता है। बात समझ रहे हैं? ये वबाओं में नहीं लग सकता। ये वबा वो है जो एक से दूसरे आदमी को लग रही है, खांसने से भी लग रही है, हाथ लगाने से भी लग रही है, छींकने से भी लग रही है। यहां कौन सा स्मार्ट लॉकडाउन होगा? यहां तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा अगर बीमारी नहीं फैलानी। ठीक है, सब बंद करना पड़ेगा। साबिर शाह साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है और आपकी इसी बात पर हम जब वापस आएंगे तो यहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक तो आपने कहा कि बिजनेस एंड कोरोना बोथ कैन नॉट गो टुगेदर, सब बंद करना होगा। आमिर साहब की भी यही राय है, आमिर साहब का भी यही कहना था कि एक मर्तबा में कर देते, ठीक से कर देते, ज्यादा नुकसान नहीं होना था, कम होना था। लेकिन गवर्नमेंट बज़िद है कि नहीं, बहुत से उन लोगों का सोचना है कि जो दिहाड़ीदार हैं, जो बेरोजगार हैं और अब तो सफेद पोश जो हैं, उनके बारे में भी सोचना है। बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उज़मा साहिबा, आपने आमिर हसन साहब की भी और साबिर शाह साहब की भी राय सुन ली और बड़ा क्लियरली, एक तो साबिर शाह साहब ने कहा कि सोशली इररिस्पॉन्सिबल हैं हम, लॉकडाउन या तो होता है या नहीं होता। व्हाट इज दिस स्मार्ट लॉकडाउन? पहले तो अली, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बैरिस्टर साहब जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बोंगे, मस्खरे, इसीलिए शायद पीपल्स पार्टी ने इनको साइडलाइन कर दिया और ये इनर सर्कल में तो है ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि ऊपर की लीडरशिप जो है वो हमारे साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के क्या डिसीजंस ले रही है डेली बेसिस पे, कि वहां पे सईद गनी साहब, नासिर हुसैन साहब कौन से सर्कल में, ये भी बता दें। मैंने उनके भी साउंड बाइट्स आज प्रोग्राम में शामिल किए हैं। वो भी वहां पर सिंध में बैठे हुए पीटीआई के फैसल वाडा साहब, अली जैदी साहब, दीगर और भी जो जुमले वहां पर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होती है, एक दूसरे के लिए जुमले कहे जा रहे होते हैं, वो भी तो एतराज कर रहे हैं। वो भी ऐसे अभी सईद गनी साहब की जुमला था कि इस किस्म की घटिया बातें न करें। वो भी साउंड बाइट हमने शामिल किया था। जब वहां से गोलाबारी होती है तो फिर जाहिर है जो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं ना, 14 सीटें वहां पे पीटीआई की भी तो है ना, तो वो फिर लोकल सतह पे जब आप एक बुरा भला कहें तो फिर उसका आगे से जवाब भी इनको मिलता है। अब आप देखें, वो डॉक्टर फुरकान की बात हुई तो क्या हम पीटीआई ऑपोजिशन में, तो क्या उसकी वो बात ना करें? अभी देखें 375 ऐसे नाम हैं इनकी जो सिंध गवर्नमेंट में जिनकी बेगमात ने बेनजीर इनकम सपोर्ट से करोड़ों रुपए हजम किए। अब उनसे वो करोड़ों रुपए वापस उगलवाए जा रहे हैं, तो क्या वहां पे अब बात ना की जाए? ये तो इनका हाल है सिंध गवर्नमेंट का। फिर ये बातें करते हैं वहां पे कुत्तों से डेथ हो रही है, वहां पे अब थर में देखें बच्चों की भूख से हो रही है, और वहां पे एड्स का हाल देख लें क्या है। और फिर ये कहते हैं कि जी हम तो बड़े आला हैं और हमने एग्जाम्पल सेट किया। सिंध हुकूमत ना होती तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसका बेड़ा गर्क। ये वुहान की बात करते हैं। आप 6 महीने दे लोगों को घर पे राशन पहुंचाएं, आपकी इतनी सख्त है? हम तरक्की पजीर,
हम कर्जों में जकड़े हुए, पता नहीं 1200 अरब का कहां से इधर उधर से सारा पैसा डाइवर्ट करके तो इस हेल्थ इमरजेंसी के लिए सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दिया गया है। और सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड जो प्रोग्राम है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू खुद प्राइम मिनिस्टर्स को हेड कर रहे हैं। न जाने ये किस दुनिया में बैठे हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आती है कि ये सीसीआई की बातें करें। सीसीआई तो पीछे रह गया है। अब डेली बेसिस पे वहां पे मीटिंग्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन होता है। एक पाकिस्तानी बन के सोचें, एक पेज पे रह के सोचें। देखिए स्मार्ट लॉकडाउन की मैं आपको, ये बड़ा एक स्मार्ट वायरस है। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि आप अपनी थोड़ी बहुत जो डेली की जो एक्टिविटीज हैं वो प्रिकॉशंस लें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और उसके मुताबिक, ताकि थोड़ा बहुत कारोबार भी लोगों का चले और आपकी जिंदगियां जो हैं वो भी उस तरह से मुतासिर ना हो। अगर लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कौम से आज रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा है कि आप वो जिम्मेदारी दिखाएं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, क्योंकि ये हुकूमत अकेला नहीं कर सकती है। अगर कौम जिम्मेदारी नहीं दिखाएगी तो फिर हर चीज बंद हो जाएगी, क्योंकि ये डेली बेसिस पे इसको देखा जा रहा है। और ट्रेजेक्टरी देखें, जो एस्टिमेट था वो ये था कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में 50,000 केसेस हो जाएंगे। हमारे 12 से 13,000 केसेस थे वो। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी अब ये मई के एंड पे जाके ये 50,000 तक जाएंगे, राइट? ऐसे ही कहा था ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अब देखिए, अब वो इसी तरह से डाटा भी कलेक्ट हो रहा है, अगस्त तक मॉनिटरिंग भी हो रही है। जब आपके अब तक 2 लाख, कल तक की फिगर 2,82,000 आपकी टेस्टिंग सिर्फ हुई है। 22 करोड़ की आवाम, 2,82,000 टेस्टिंग है, तो इस तरह भले अगस्त के महीने पे आप ले जाएं, थोड़ा लटकाई जाए इसको, लंबा किए जाए, लिए जाए। ये दुनिया के लिए एक झटका है। ये दुनिया वो पुरानी दुनिया नहीं रही है। पाकिस्तान में 10 लाख लोगों पे 2 डेथ्स हैं। आपको पता है कि स्पेन में 10 लाख लोगों पे 400 डेथ्स हैं, इटली में 10 लाख लोगों पे 300 डेथ्स हैं। अब अमेरिका में देखें 75,000 डेथ्स हो चुकी हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बहुत करम है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अभी तक पाकिस्तान को बचाया हुआ है। ताकि पता तो चले कहां पे हमारी टेस्टिंग हो रही है और अब तो हमारी स्मार्ट टेस्टिंग भी हो रही है। मीडिया हाउसेज में पंजाब गवर्नमेंट जा रही है, बाजारों में जा रही है, मसाजिद में जा रही है, स्टोर्स में जा रही है, वहां पे रैंडम स्मार्ट टेस्टिंग हो रही है, जिससे पता चलेगा कि ये फिर आपकी जो एक क्लस्टर और रेड जोन्स जो हैं, जहां पता लगता है कि कोई केस है, फौरन वहां पे ट्रेस और ट्रैकिंग होती है, उसको लाया जाता है और वो सील किया जाता है इलाका। वहां पे इस इलाके पे राशन पूरा प्रोवाइड किया जाता है। ये बातें करते हैं कि जी लॉकडाउन करें। आपको पता है यूरोप में 1000 यूरो फाइन है अगर आप घर से बगैर इजाजत निकलते हैं। आप ये पाकिस्तान में कर सकते हैं? आपकी ये इतनी सख्त है आपके पास? तरक्की पजीर गाड़ी में 2 से ज्यादा लोग सवार हों तो फिर चलान तो हो ही रहा होता है ना, जुर्माने तो आप लोग भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जिनके हजार गुना हेल्थ के सिस्टम हमसे बेहतर थे, वो उन्होंने घुटने टेक दिए। हम किस गिनती तो फिर तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया कि हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें इस खौफ से, इस डर से हमें ये आवाम को नहीं पट्टी पढ़ानी चाहिए कि डरना नहीं है, लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है। डरने का मकाम है। डरोगे तो घर पे रहोगे, नहीं तो अगर डरोगे नहीं, सड़कों पे निकल आओगे तो वायरस खुद भी अपने आप को इन्फेक्ट करवाओगे, दूसरों को भी करवाओगे। आप एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जी आमिर हसन साहब, आप वो चीजें कहें जिसका आपको जी आमिर हसन साहब, पहली बात ये है साबुन हर एक के पास है, कोई ऐसी बात नहीं है। बात सुने ना जी आमिर हसन साहब, मैं नहीं समझता, मेरी पार्टी में जो भी हैसियत है, पार्टी भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं, मुझे नहीं ज़रूरत है अब मैं इन पे ये एतराज़ करूँ कि ये खुद तो उनकी एमपीए हैं और इनके घर वाले इनके साथ में। मैंने कभी बोंगे और मस्खरे नहीं कहा। मेरी बात सुने यार, पॉलिटिकल डिबेट रखते हैं, पॉलिटिकल डिबेट रखते हैं आमिर हसन साहब, पर्सनल गुफ्तगू नहीं करते, लेट्स कीप इट पॉलिटिकल। देखिए इसे ऐसे ही रहने दें। बात ये है कि सवालात इनसे ये किए जाते हैं, ठीक है जी आप लॉकडाउन हटाएं, आप लगाते ही ना, एक लम्हे के लिए ना लगाते। अल्लाह की इतनी बरकतें हैं यहाँ पे कि अभी 591 लोग हो गए हैं यहाँ पे जहाँ बहक इस बीमारी से, और जिस तरह जा रहा है और इनके नज़दीक ये सारी बरकतें अभी हैं, तो फिर भाई आप एक लम्हे के लिए भी लॉकडाउन ना लगाते। देखिए बात को अगर जब तक आप मसले को समझेंगे नहीं, उसके हल की तरफ नहीं जाएंगे। मसला है दुनिया भर में बिल्कुल मानते हैं कि बड़े बड़े मुल्कों का नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है उनका बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और कोलैप्स इसलिए किया कि भाई ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है और इसके खिलाफ लड़ना। अब इसके खिलाफ आपके पास इतनी दुनिया की मिसालें आ गई, आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी, आप बहुत कुछ कर सकते थे। भाई आपने क्या नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर, कल अभी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर बता रहे थे कि 2 वेंटिलेटर भेजे हैं
वफाकी हुकूमत ने। ये है वो हेल्थ इमरजेंसी जो इन्होंने नाफिज की है। और जो इनके स्कैंडल्स आ रहे हैं वो तो अलहदा आपको नजर आ जाएंगे। अभी शाह साहब ने भी जिक्र किया यहाँ पे एक्सपो सेंटर का। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पेशेंट्स के साथ कैसा सलूक है और किस तरह कितना पैसा लगाया गया। मियो हॉस्पिटल वाला जो इनका कवर अप सारा जो स्टोरीज आ रही हैं वो आप देखेंगे, आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद मुझे बताएं कि 12 करोड़ इन्हें मुराद अली शाह बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो बात करता है, वो आर्ग्यूमेंट्स देता है, वो सिंध के लोगों का मुकदमा लड़ रहा है, ना सिर्फ सिंध के लोगों का, वो पाकिस्तान के लोगों की सेहत का मुकदमा लड़ रहा है। लेकिन इनका जो वजीर आला पिछले 20 महीनों से क्वारंटीन में है वो कभी बोला है, उन्होंने कभी बात की है? इन लफ्ज बड़े बुरे लगते हैं। अब जो नहीं बोलता वो कहते हैं ना बोल बोल मिट्टी दे अब भाविया। अब ये जो कुगू कोड़े आपने 12-12 करोड़ लोगों के ऊपर बिठाए हुए हैं और वो बोलते भी नहीं इतनी मुश्किल के अंदर, बताते भी नहीं कि हालात क्या हैं और हमें नबर्द आजमा किस तरह होना है। भाई आप लोग लॉकडाउन को लॉकडाउन कर लेते 15 दिन के अंदर। हम बार बार कहते हैं अगर 15 दिन या 2 महीने जो हमने गुजारे हैं, अली मुमताज साहब क्या हमने ये लॉकडाउन किया है? इस लॉकडाउन को सैबोटाज किसने किया है? सैबोटाज करने वाली एक ही शख्सियत है और वो लफ्ज मेरे नहीं है, इन्हें गुस्सा आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज हैं। अनापरस्त, मुतकब्बर, मुतआसब शख्स जो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा है, उसने हमेशा मजाक उड़ाया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी लॉकडाउन का ऐलान करती है, सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन का ऐलान करती है और वो सारे बैठ के आर्ग्यूमेंट्स उसके खिलाफ देता है। तो और कंफ्यूजन आपने किस तरह फैलानी है? आपके वो वजीर जो सूबों के अंदर जाके कहें कि ताजिर बाहर निकलेंगे, बगावत हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ऊपर वफाकी हुकूमत ने और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लॉकडाउन का ऐलान किया हो, तो क्या उन्हें हम कम अज कम लफ्ज में मस्खरे भी नहीं कह सकते? ठीक है साबिर शाह साहब, एक आखिरी बात मैं समझता हूं, हम फिर हाथ जोड़ते हैं, ये आपकी हमारी सियासी लड़ाई नहीं है। आप सियासत करने आए हुए हैं। इमरान खान का जहन है कि उसने गवर्नर हाउस लाहौर में कहा कि ये वक्त है, आपके पास बजट है, अपने अपने हलकों में छा जाएं और हल्के हमेशा के लिए पक्के कर लें। हम इसलिए नहीं आए, हम कहते हैं लोगों की जिंदगी से मत खेलिए। खुदा के लिए राय सुन ली, आपने सुन लिया कि उनका जवाब क्या था कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। आपकी नजर में साबिर शाह साहब इस मसले का हल क्या है? क्योंकि ईद का मौका भी है, बहुत से ऐसे छोटे ताजिर हैं जिन्होंने माह रमज़ान में या आखिरी 15 रोज़ में उनकी बहुत सी चीज़ों का दारोमदार उस पर होता है कि जी उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया होता है, उसको भी फ़रोख्त करना होता है, लोगों ने भी ईद के लिए ख़रीदारी करनी है। तो क्या किया जाना चाहिए था या क्या होना चाहिए ताकि हम कोरोना के साथ जो हमारे ये मामला चल रहे हैं, जो मुश्किल है, हम उसको भी फेस कर सकें और साथ साथ ये दूसरी चीज़ें भी साइड बाय साइड चलती रहें? अली मुमताज साहब, बिजनेस एंड कोरोना कैन नॉट गो टुगेदर। या बीमारी को फैला लें या बीमारी को वहीं रोक दे जहां है। ये बीमारी ऐसे ही फैली है। जहाज इन्होंने आने दिए बाहर के मुल्कों से, ये बहुत ही गलत पॉलिसी थी। वाहिद एक पॉलिसी जिस पर मैं तनकीद कर रहा हूँ ये जहाज है। दूसरा, ये एहसास प्रोग्राम के ऊपर लाइनें लगवाई हैं इनको नहीं पता था कि लाइनें लगने से क्या होगा। जिस आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी वो तो लड़के भी रिस्क हासिल करने की कोशिश करेगा। दो बातें, कुछ भी नहीं हो सकता, कसूर किसी का ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ये ऐसी बीमारी को लेके आया, कोई वजीर आला या कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ये कुछ कर सकते हैं बाहर की दुनिया में, ना ट्रंप कुछ कर सका, ना यूरोप कुछ कर सका। आप इनकी बातें सुनते थे, इनके साइंसदानों की बातें सुनते थे, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। एक ही तरीका है, बंद करते सारा कुछ, ये ना आपको 5-6 दिन के बाद करना पड़े। रिमेंबर वन, इसके बाद जो हालात होंगे, दुनिया बदल चुकी है। अरबपति खरबपति भी घरों के अंदर कैद हैं और बाद में जब बाहर निकलेंगे तो उनको भी कारोबारों का बेड़ा गर्क हुआ होगा। अली, फैक्ट्री को इस्त्री नहीं है कि इसको बंद कर दिया और चला लिया। एक दफा फैक्ट्री बंद हो गई तो कई के महीने फैक्ट्री नहीं खुलेगी, कई बैंक तबाह होंगे, कई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तबाह होंगी, कई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज तबाह होंगी, उनके साइज श्रिंक हो जाएंगे। ऑनलाइन पे लोग कारोबार कर रहे होंगे छोटे मोटे कमीशन के ऊपर और माल बेच रहे होंगे और बड़े बड़े सेठ परेशान होंगे, स्टॉक एक्सचेंज डूबेंगे, जमीनें नीचे आएंगी। आपको क्या पता क्या होने वाला है? गरीब तो पहले ही सफर का रतौर कर लेगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप? ये अशराफिया शरूफिया वाले जो ड्रामे है ना, ये अशराफिया को भी पता लग जाएगा। ये पहली दफा सारे काबू आए हैं जहां बादशाह को भी कोरोना हो सकता है, जहां शहजादे को भी हो सकता है, जहां गरीब आदमी को भी हो सकता है। और दूसरी बात है, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये क्लिप संभाल के रखिएगा। पाकिस्तान का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पूरी इकोनॉमी $285 अरब। एक दिन अगर पूरी इंडस्ट्री बंद हो, कोई काम ना हो, कर्फ्यू लगाओ, टोटल लॉकडाउन हो, तो नुकसान है $131 अरब रोज का। फर्ज कीजिए
100 अरब रुपया रोज का नुकसान हो, चलिए 31 अरब का कारोबार होता रहे। इसका मतलब ये कि आपकी जो इकोनॉमी है 150 पौने 200 अरब डॉलर तक आ जाएगी साल के आखिर में। दुनिया भर की इकोनॉमी 9000 अरब डॉलर की है, वो 25 से 30% श्रिंक होगी। आपकी एक्सपोर्ट्स आदि रह जाएंगी, शायद रह गई हैं। तो आपके साथ जो होगा वो दुनिया से ज्यादा बदतर होगा, क्योंकि आपके अंदर तो कुशन ही नहीं था किसी किस्म का शौक संभालने के लिए। दूसरी बात है, आपको स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन दे दूं, ये जंगों में लग सकता है। बात समझ रहे हैं? ये वबाओं में नहीं लग सकता। ये वबा वो है जो एक से दूसरे आदमी को लग रही है, खांसने से भी लग रही है, हाथ लगाने से भी लग रही है, छींकने से भी लग रही है। यहाँ कौन सा स्मार्ट लॉकडाउन होगा? यहाँ तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा अगर बीमारी नहीं फैलानी। ठीक है, सब बंद करना पड़ेगा। साबिर शाह साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है और आपकी इसी बात पर हम जब वापस आएंगे तो यहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक तो आपने कहा कि बिजनेस एंड कोरोना बोथ कैन नॉट गो टुगेदर, सब बंद करना होगा। आमिर साहब की भी यही राय है, आमिर साहब का भी यही कहना था कि एक मर्तबा में कर देते, ठीक से कर देते, ज्यादा नुकसान नहीं होना था, कम होना था। लेकिन गवर्नमेंट बजिद है कि नहीं, बहुत से उन लोगों का सोचना है कि जो दिहाड़ीदार हैं, जो बेरोजगार हैं और अब तो सफेद पोश जो हैं, उनके बारे में भी सोचना है। बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उस्मा साहिबा, कोरोना एंड बिजनेस बोथ कैन नॉट गो टुगेदर, सब बंद करना होगा। मुझे तो साबिर शाह साहब की बातें मैंने सुनी है, मैं इम्प्रेस भी हुई हूँ। सारे फिगर्स जो हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त बनाए। जीडीपी कितना है, बाहर के मुल्कों में कितना है, आपकी मईशत पे कितना इफेक्ट होना है, कितना आपने, हाँ, सब कुछ बताने के बाद उन्होंने कहा है कि बंद कर दो मुल्क को। उसके बाद ये नहीं उन्होंने बताया इसका सोल्यूशन क्या है। जब सारी कौम भूख से मर जाए और उनके घरों में कोई राशन ना हो, उनके चूल्हे बंद हो जाएं और उनके कारोबार ठप हो जाएं, उसके बाद साबिर शाह बताएं ना फिर हमने किधर जाना है। ठीक है, यहीं पे एक मिनट रुक जाए। साबिर शाह साहब से यहीं पे सोल्यूशन दे दें, यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। साबिर शाह साहब सोल्यूशन सर बंद कर दें, 6 महीने बंद कर दें। साबिर शाह साहब का सोल्यूशन दे लेते हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, He'll give his reasoning. Let him give his reasoning. आपके जितने गैदरिंग्स हैं बड़ी-बड़ी सब बंद है। साबिर शाह साहब, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, सोल्यूशन दे, आप सोल्यूशन दें। जी साबिर शाह साहब, एक बात सोल्यूशन, पहले सोल्यूशन दे लेते हैं, फिर उसके बाद आप आइएगा। जी साबिर शाह साहब, पहले ये फैसला करें कि जिंदा रहना है या वायरस से मरना है। वो तो वैसे घर में मर जाएंगे जब आपके पास आटा चीनी खाने के लिए कुछ नहीं होगा और आपके बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे, तो ठीक है। साबिर शाह साहब सोल्यूशन बताइएगा प्लीज। बैठेंगे, खुदकशी करने पे आ जाएंगे। सोल्यूशन बताइएगा साबिर शाह साहब। आप वुहान की तरह उनके दोस्तों हल बताने दें, वो किसी पार्टी से नहीं है, एनालिस्ट है, उनको जवाब तो देने दें प्लीज। Nobody dies of hunger here. कोई भूख से नहीं मरता, चंद दिन सब्र करें। वायरस has no empathy or compassion for you. No leader on earth has a solution. कोई अकलमंद ब्रेन नहीं बैठा हुआ कहीं पे। What are you talking about then? Why are you criticizing? एहसास प्रोग्राम को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इतना बड़ा रिलीफ पैकेज मुझे बताएं किसी ने दिया है पहले पाकिस्तान में? और फिर वहां पे ना सिर्फ 144 अरब का 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज, उसमें से 23 लाख तो सिंध में फैमिलीज हैं। फिर आपके बेरोजगारों के लिए 75 अरब का प्रोग्राम है। फिर आपके दिहाड़ीदारों के लिए अलग प्रोग्राम है। आपके छोटे तबके के लिए, कारोबार के लिए। साबिर शाह साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए ताकि आप फिर अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। साबिर शाह साहब की अभी बात मुकम्मल ही नहीं हुई थी। उस्मा साहिबा, उनकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, उनको बात तो मुकम्मल करने दें, बात तो मुकम्मल करने दें। उस्मा साहिबा, आप भी रहम करें प्लीज, उनको बात मुकम्मल करने दें। हर चीज छोड़ के तो हम अपने जो अवाम की खातिर के वो भूख ना उनको राशन पहुंचे, उनको इमदाद पहुंचे, लेकिन कब तक? सर प्लीज गो अहेड। रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कितनी इमदाद हमें आ गई है बाहर से, जरा बता दें आप। सर प्लीज गो अहेड। साबिर शाह साहब, यार, there is total rumpus, chaos and pandemonium. Whosoever has a solution will earn more than a vaccine. जो वैक्सीन डिस्कवर करेगा वो कम कमाएगा, जो सोल्यूशन देगा उसके पास ज्यादा होगा। रोज सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि या तो कर्फ्यू लगाएं या टोटल लॉकडाउन करें, एक प्राइम मिनिस्टर आके तकरीर करते 4 मिनिस्टर आ जाते हैं, 2 सिंध से आ जाते हैं, 2 फ्रंटियर से आ जाते हैं, मीडिया के वाजिबात दे नहीं रहे, कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, मर रहे हैं मीडिया वाले, और आप टीवी स्क्रीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब मैं बात कोई करना चाह रहा था, आपने मेरा मुंह खुलवा दिया। सी, एवरीबॉडी इज बिलीविंग हिज डाउट्स एंड डाउटिंग हिज बिलीव्स। इफ एनीबॉडी हैज अ सॉल्यूशन, वो इस वक्त तक लोगों के सामने आ गया होता है। यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिगेस्ट सफरर।
ये सबसे डेवलप्ड नेशन है, इसमें सबसे अच्छे ब्रेन बैठे हुए। हमारे लिए सोल्यूशन बताए ना, हमारे लिए सोल्यूशन उन्होंने कह दिया ना जी, बंद कर दें, सोल्यूशन ये है बंद करें, कोरोना से बचना है तो बंद करें। बंद करके फिर आप हर एक के घर में राशन पहुंचा सकते हैं, कितने महीने तक पहुंचाएंगे? तो लोग खुदा न खास्ता मरते रहे, लोग खुदा न खास्ता मरते रहे, इन्फेक्शन ये चलता रहे, दिसंबर तक चलता रहे। गर्मियों का आपने कहा था गर्मी आएगी खत्म हो जाएगा, गर्मी आई कहाँ खत्म हुआ? थोड़ी जिम्मेदारी ले लें और आप अपनी एहतियाती तदाबीर जी आमिर साहब, क्लोजिंग कमेंट्स, क्लोजिंग कमेंट्स सर, हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। We've got to close उस्मा साहिबा, let him speak। आमिर साहब बात करें, चुप नहीं करना। आमिर साहब बात करें आप प्लीज। उस्मा साहिबा, आमिर साहब की भी बात सुन लें, हो सकता है आपके मतलब की कोई बात कह दें, हो सकता है आपके मतलब की कोई बात आ जाए। आमिर साहब खामोश भी करवा, आप बात मुकम्मल करें। आमिर साहब, आई एम लिसनिंग टू यू। आमिर साहब आपको मैं सुन रहा हूँ, बात मुकम्मल करें। ये किसने बुला लिया? आमिर साहब बात मुकम्मल करें प्लीज। कैसे करूँ, वो चुप ही नहीं कर रही है। सबसे बेहतर जो है कोरोना के लिए इतना बोल के इनका मियाँ पीएमएलएन में है, ये पीटीआई है, ये उसमें तो ये असरअंदाज नहीं होता। बार बार छोड़ना चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उनके उस्मा साहिबा, दिस इज नॉट फेयर फॉर द अदर पीपल। बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, वो भी बात करने के लिए आए हुए होते हैं। उस्मा साहिबा, काइंडली उनको भी बात मुकम्मल करने दें। जी आमिर हसन साहब प्लीज। बात ये है, जी आमिर हसन साहब, ये है असल में कोई होशबंदी की बात इन्होंने नहीं सुननी है। अगर आपकी जिंदगियां होंगी तो कारोबार भी होंगे, और किसी मुल्क में, किसी पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता भूख से नहीं मर रहा। यहाँ पे हमारा सोशल सिस्टम इतना अच्छा, कोई नहीं मरा, तो यहाँ पे इतना अच्छा सोशल सिस्टम है, लोग किसी को भूखा मरने नहीं देते, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके हमसाए हैं, एक हमारा सिस्टम है, लोगों को चैरिटी की आदत है। इसलिए खुदा के लिए मायूसी ना फैलाएं, आपका काम बीमारी रोकना है, डराना नहीं है कि लोग भूख से मर जाएंगे। बीमारी से मारने के लिए आपने उन्हें छोड़ दिया है, और दूसरा आप डरा रहे हैं कि भूख से भी मर जाएंगे। आप लोग किस एजेंडे के ऊपर है? आपका काम है कि मुल्क के अंदर बीमारी के बारे में अवेयरनेस पैदा करके लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज दे। कोई रोटी से नहीं मरता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हर शख्स को कोई ना कोई मदद पहुंच जाएगी, और वो भी राज़िक है, वो भी पहुंचा देगा। आप राज़िक नहीं है, आपका काम ये है कि आपने बीमारी के आगे बंद बांधना है। और वो दुनिया के, जैसे शाह साहब फरमा रहे हैं और यही सारे लोग फरमा रहे हैं जो कि ये सुनते नहीं है, कि एक ही हाल है कि इस वक्त सख्त लॉकडाउन करके ये 4 हफ्ते हैं या 6 हफ्ते हैं, सब्र से बैठ जाएं। अगर 2 महीने में आपके लॉकडाउन से कोई भूखा नहीं मरा तो 4-6 हफ्ते में भी कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन बीमारी से आपने 600 बंदा मार दिया है, और पता नहीं कितना आप मरवाना चाहते हैं। हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा है, सबका ये कहना है कि जी लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। और जो बात अभी आमिर हसन साहब ने की, डेफिनेटली हमारा एक सिस्टम है कि हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हम दूसरों को देते हैं और उनकी जरूरत भी पूरी करते हैं। आमिर हसन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, उस्मा कारदास साहिबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, साबिर शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इल्म मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।